A mutual fund company has the following assets under it on the close of business as on. So you have following shares of company L Limited, M Limited, N Limited, P Limited, and the number of shares that you have invested in. On 1st April, the market on 1st February 2019, the market price per share is stated here. And on 2nd February, what is the market price that's been given? तो market price changes on daily basis. तो अपने को 2 दिन का market price दिया है हमें 1st February का और 2nd February का. Total number of units mutual funds के units है 6 lakhs. So total number of outstanding units are 6 lakhs. ठीक है. तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने 4 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने वो दिए हैं. सो एल लिमिटेड, एम लिमिटेड, एन लिमिटेड एंड पी लिमिटेड. what they have asked us to calculate the NAV of the fund. So we have to calculate the NAV of the fund. Then second point, assume one Mr. A submits a check of rupees 30 lakhs to the mutual fund and the fund manager of the company purchases 8,000 shares of M Limited and the balance is held in bank. What would be the position of the fund? This is the second question that they have asked. And the third one, find new NAV of the fund as on 2nd February 2019. ठीक है. So third part में they have asked us to calculate the new NAV on 2nd February 2019. मतलब first और second question के लिए हम लोग 1st February 2019 को consider करेंगे और third question के लिए हम 2nd February 2019 को consider करेंगे. ठीक है. So सबसे पहला first question solve करते हैं, first point solve करते हैं, that is NAV of the fund as on 1st February 2019. Computation of NAV as on 1st Feb 2019. ठीक है. So let's compute NAV. So as far as things are concerned, for calculation of NAV, we will be first writing assets. We will be first writing market value of securities. And as far as market value of securities are concerned, we have invested in 4 different companies. So market value of security we have to calculate for each of the security. So market value of securities को मैं underline करता हूं and market value of securities में 4 companies के market value calculate करता हूं. The 4 companies are, let's see what are the 4 companies and what the balance they have. So L, M, N, P. So L 20,000 shares of 20 each. So L is 20,000 into 20. So for L Limited, it is 20,000 into 20 rupees. So this will be the value for L Limited. So L Limited के लिए 20,000 into 20, that's 4 lakhs. Market value of L Limited is 4 lakhs. Then we will be calculating the market value of next firm, M. M के लिए I think they have 30,000 shares into, let's check the market value for M. So M का 30,000, 312.40 is the market value. ठीक है. So for M it's 312.40. So into 30,000.
So that's going to be 93 lakhs 72,000. Going to be 93 lakhs 72,000. Then N का नंबर ऑफ शेयर्स चेक करते हैं एंड मार्केट प्राइस देखेंगे फर्स्ट को कितना है. सो द नंबर ऑफ शेयर्स आर 20,000 एंड द मार्केट प्राइस इज 261.20. ठीक है, सो इट इज 20,000 and 261.20. So 20,000 into 261.20. So that's going to be equals to 52 lakh 24,000. This is for N. N के बाद I think P है. P के number of shares 30,000 थे I think so. 60,000. P number of shares 60,000 and the market price is 505.1. That's the market price for P Limited. So ठीक है. तो P Limited के लिए it is 60,000 into 505.1. Let's calculate the value for P Limited shares. So it is 3 crores tax and 6,000. 3 crore 3 lakh 6,000. So let's total this. Plus 52 lakh 24,000 plus 93 lakh 72,000 plus 4 lakhs. So the total is going to be 4 crores 53 lakh and 2,000. That's going to be your total of market value of securities. As far as this is concerned, they don't have any other assets. So they have only market value of security. They don't have liabilities. They have not given us the liability. So this is the total assets that we have. So we'll be calling this as total assets या total net assets भी इसी को बोलेंगे. So total net asset value. क्योंकि liabilities है नहीं डिडक्ट करने के लिए. So total net assets value भी यही है. So if this is the total net asset value, then let's calculate NAV per unit. So NAV per unit is equals to, we know the formula, total NAV upon number of units. So as per this, the total NAV is 4 crore 53 lakhs 2,000 upon number of units, and number of units I think अपन ने 6 lakhs देखे थे. कितने पड़े थे number of units? I think 6 lakhs है. 6 lakhs. So total number of units the mutual fund has is 6 lakhs. So 6 lakhs. So the answer will be 75.503. That's going to be your NAV as far as this mutual fund is concerned. ठीक है, so ये आपका NAV है. That is the first question that they have asked. तो उनका first question हमने solve किया. We have calculated the NAV of this scheme as on 1st February 2019. ये उन्होंने पूछा था. नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? तो सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है, assuming one Mr. A submits a check of rupees 30 lakhs. So your asset management company has received a check of rupees 30 lakhs from Mr. A, and the fund manager in turn, what he did, he purchased 8,000 shares of M Limited with this check of 30 lakhs. यानी 30 lakhs में से he has purchased 8,000 shares
ऑफ एम लिमिटेड, और जैसे 8000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड उसने खरीदा तो जरा ऊपर देखो, ऑन 1st February 2019 व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ एम लिमिटेड का शेयर्स? द मार्केट प्राइस फॉर एम लिमिटेड का शेयर्स इज 312.40, बराबर। तो उसका मतलब एम लिमिटेड, ए ने फंड मैनेजर ने 8000 शेयर्स एम लिमिटेड का खरीदा, तो फंड मैनेजर ने कितना एक्सपेंडिचर किया रहेगा, दैट वी विल बी फर्स्ट कैलकुलेटिंग। मैं इधर ही कैलकुलेट कर रहा हूं, 8000 इनटू द मार्केट प्राइस, so that's going to be 8000 into the market price of the shares on that day is 312.4, so that is equals to, so he would have spent 24 lakh, so he would have spent 24 lakh 99,200, is that clear? But the check that he have received is 30 lakhs, so 30 लाख का चेक उसको मिला, लेकिन उसने इंटर्न स्पेंड किया रहेगा या सिक्योरिटीज खरीदा 24 लाख 99,200 का, सो द डिफरेंस बिटवीन 30 लाख एंड 24 लाख 99,200 इज स्टिल विद द एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन द फॉर्म ऑफ बैंक बैलेंस, सो एंड बैलेंस इज हेल्ड इन बैंक। तो ये भी अपने को कंसिडर करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड। सो डियर व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द फंड। सो पोजीशन ऑफ द फंड थोड़ा चेंज हो जाएगा बिकॉज एक चेक आया और हमने नया शेयर्स खरीदा, तो रिपोजिशन जो है फंड का वो हम कैलकुलेट करते हैं एज ऑन 1st February 2019। सो लेट्स कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द फंड वंस अगेन। So second point में they have asked us to calculate revised position of the fund as on 1st Feb 2019. So let's calculate the revised position of the fund, and for calculating revised position of the fund we will be first calculating how much amount we have invested in M Limited का शेयर जो अपन ने ऊपर मल्टीप्लाई किया था। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए इज रुपीज 30 lakhs, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। Then amount invested in shares in M Limited shares, and that amount is equals to, we have calculated the amount, यहाँ पे वापस कैलकुलेशन बताते हैं। 8000 रुपीज का शेयर्स है एंड 8000 का मार्केट वैल्यू था 312.40, दैट्स द मार्केट वैल्यू। सो हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था उनका 312.40, सो दैट वाज 24 lakhs 99,200, that is the amount invested in M Limited. Therefore what we have to calculate is the balance amount left या bank balance left will be equals to 30 lakhs का चेक मिला था, उसमें से 24,99,200 आपने स्पेंड किया, so how much is left that we have to calculate. So amount that is left is 5,08,000. So you have 5,08,000 as a bank balance in your fund. I hope this is clear. ठीक है? So accordingly, let us calculate the revised position of the fund. And for calculating revised position, once again we are drawing the table. So revised position of fund as on 1st Feb 2019. So let me draw a table. Particulars, rupees. So while calculating revised position, सबसे पहले assets calculate करते हैं।
एंड एसेट्स में सबसे पहले आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज में वही फर्स्ट फेब का ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो फर्स्ट फेब का ही अगर कैलकुलेट कर रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, देन डियर स्टूडेंट्स दैट्स गोइंग टू बी रिमेन सेम. यानी ये फॉर एल लिमिटेड का शेयर्स तो उतना ही है. सो एल लिमिटेड का शेयर्स आर गोइंग टू रिमेन सेम. तो मैं उधर से ही कॉपी कर रहा हूं. एल लिमिटेड दे आर गोइंग टू रिमेन सेम, और वो सेम है तो उनका वैल्यू भी सेम ही रहेगा 4 lakhs. देन एम लिमिटेड का जो शेयर्स है वो चेंज होगा. एम लिमिटेड का हमने एडिशनल शेयर्स खरीदा है. सो एम लिमिटेड का शेयर्स जो था वो 30,000 था. अब एम लिमिटेड का शेयर्स कितना होगा? सो नाउ एम लिमिटेड का शेयर्स 38,000 होगा, बिकॉज वी हैव एडिशनली परचेज शेयर्स ऑफ 8,000. सो 8,000 का शेयर्स हमने एक्स्ट्रा परचेज किया एट 312.40. सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द हाउ मच वैल्यू एम लिमिटेड का शेयर्स हैज गॉट. So 38,000 into 312.4. So the revised position for M Limited का shares is 1,18,71,200. ठीक है, this is M Limited. And ये N Limited का it is going to remain same. सो एन लिमिटेड का हमने एडिशनली कुछ नहीं परचेस किया था, तो मैं वहां से ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था. सिमिलरली पी लिमिटेड का भी शेयर्स उतना ही है. सो आई एम अगेन कॉपिंग दिस. टोटल करके आउटर कॉलम में अगर लेके गए तो टोटल इज गोइंग टू चेंज. सो वंस अगेन आई एम टोटलिंग दिस. So the total is 4,78,01,200. That's the market value of securities that you have. लेकिन अब आपके पास एक और एसेट्स क्रिएट हो गया, दैट इज बैंक बैलेंस, जो स्टार्टिंग में नहीं था आपके पास. लेकिन वो जो चेक मिला था उससे आपने खाली 24,99,000 का परचेस किया, तो हमारे पास बैंक बैलेंस भी रह गया. एंड द बैंक बैलेंस दैट इज लेफ्ट विथ अस इज 5,08,000. सो 5,08,000 का हमारे पास बैंक बैलेंस भी है. एंड डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हम टोटल करेंगे. लायबिलिटीज कोई भी जनरेट हुआ नहीं है. सो दिस विल बी योर टोटल नेट एसेट वैल्यू. सो दिस इज गोइंग टू बी योर टोटल नेट एसेट्स वैल्यू, एंड this is the revised amount of your fund. So that's going to be 4,83,02,000. ठीक है. So this is your revised fund position. They have not asked you to calculate the NAV once again. So you don't have to calculate NAV. They have only asked you to calculate revised position of the fund. तो हमने revised position of the fund calculate किया, लेकिन ये खाली total net assets value आया. फंड के पोजीशन में कैलकुलेट करने के लिए जब फंड का पोजीशन बोलता है तो टोटल एनएवी तो बराबर है, टोटल एनएवी आपने कैलकुलेट किया, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स भी चेंज हो गया रहेगा. सो डियर सर रिवाइज पोजीशन में हमें नंबर ऑफ यूनिट्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट पर्पस हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ यूनिट्स एलोटेड टू नंबर ऑफ यूनिट्स एलोटेड टू मिस्टर ए. वो पहला हम कैलकुलेट करेंगे. जैसे मिस्टर ए ने आपको चेक दिया 30 lakhs का, आपने उसे कितना नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट किया रहेगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू. सो आपने ए को कितना अलॉट किया रहेगा, तो ए ने 30 lakhs का चेक आपको दिया था. ठीक है, जिस दिन उसने चेक दिया उस दिन आपके फंड का एनएवी कितना था, उस दिन आपके फंड का एक यूनिट म्यूचुअल फंड का 75.503 में सेल हो रहा है. दिस इज द एनएवी. एनएवी डिटरमाइंस की जो भी पर्सन आपसे उस दिन खरीदेगा या उस दिन आप बेचोगे, सो दिस इज द प्राइस दैट यू हैव टू कंसीडर. सो डियर अकॉर्डिंगली
how many units have you issued to Mr. A? That is what we are going to calculate. So 30 lakhs जब उसने चेक दिया था और 75.503 का NAV था, so the number of units that is allotted to Mr. A is 39,733.521. The number of units can be in points. Is that clear? Units point में हो सकता है, shares points में नहीं होते. Mutual funds के units decimals में भी allot होते हैं. So ये decimals भी लिखा और normally 3 decimals होते हैं, इसलिए 3 decimals लिखा है मैंने. So this many number of units you have allotted to Mr. A after receiving a check of 30 lakhs from him. और अगर इतना यूनिट्स अगर आपने एलोकेट किए मिस्टर ए को, सो टोटल यूनिट्स ऑफ द फंड कितने हो गए? टोटल यूनिट्स ऑफ फंड विल बी इक्वल्स टू 6 lakhs थे स्टार्टिंग में, प्लस आपने अलॉट किए 39,733.521. सो इतने यूनिट्स अलॉट करने के बाद द टोटल यूनिट्स आर 6,39,733.521. These are the total number of units outstanding as on 1st February 2019 after receiving a check of 30 lakhs from Mr. A. Okay, ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट क्लियर. तो ये हो गया फंड का पोजीशन, रिवाइज पोजीशन. तो रिवाइज्ड एनएवी इतना है टोटल एनएवी, और रिवाइज्ड नंबर ऑफ यूनिट्स is 6,39,733.521. Okay, then the third point what they have asked, third point में उन्होंने हमसे पूछा है we have to once again calculate NAV, but this time the NAV is to be calculated on 2nd February 2019. So dear sir, what we have to consider all the prices of 2nd February 2019. ठीक है, so let's calculate the NAV for 2nd February 2019. So what I'm going to do, मैं NAV कैलकुलेट करने के लिए पूरा कॉपी डाउन कर रहा हूं पोजीशन अपना, जो 1st February का था वही पोजीशन कॉपी डाउन कर रहा हूं. So has to calculate the NAV. So computation of NAV as on 2nd Feb 2019. ठीक है, तो ये 1st Feb का पोजीशन मैंने कॉपी पे डाउन किया है. 1st Feb का पोजीशन में हम चेंज करते हैं. L का 20,000 शेयर्स है, लेकिन मार्केट प्राइस आज चेंज हुआ है. मार्केट प्राइस 20.50 है, एंड अकॉर्डिंगली द पोजीशन एज ऑन 2nd February is 20,000 into 20.5, so that's going to be 4,10,000. So मार्केट प्राइस बढ़ने के कारण आपका मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज चेंज हुआ. एम लिमिटेड का 38,000 ही शेयर्स है, क्योंकि हमने 8,000 एडिशनली ले लिए थे, लेकिन मार्केट प्राइस चेंज हुआ है. सो लेट्स चेक द मार्केट प्राइस ऑफ एम लिमिटेड. एम लिमिटेड का मार्केट प्राइस एज ऑन 2nd इज 360. डायरेक्ट 360 का जंप हुआ है. सो 2nd Feb को एम लिमिटेड का मार्केट प्राइस 360 हुआ है. So 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 38,000 into 360, so that's going to be, ये चेंज हो जाएगा. So this is going to be 1,36,80,000. that's going to be the market value of M Limited shares. फिर N Limited का शेयर्स का मार्केट वैल्यू चेंज होके कितना हुआ है? 382 कुछ हुआ था. लेट्स चेक. 382.10. so that is 382.10. चलो 382.10 हुआ है एन लिमिटेड का मार्केट वैल्यू. so let's multiply 20,000 into 382.10, so that's going to be 76 lakhs 42,000. 76 lakhs 42,000 is the market value of N Limited shares.
एंड पी लिमिटेड का मार्केट वैल्यू कुछ कम हुआ था, 503 हुआ है, 505 से 503 हुआ है। 503 पॉइंट कितना जरा चेक करते हैं, 503.90 हुआ है, ठीक है। सो इट इज 503.90, दैट्स द वैल्यू। सो उनका वैल्यू थोड़ा कम हुआ है, 60,000 इंटू 503.90 and that's going to be 3 crore. So market value is going to change 3 crore 2 lakhs 34,000, ठीक है। And accordingly, dear student, the total is going to change. So let's total this once again. So 76 lakhs 42,000 plus 1 crore 36 lakhs 80,000 plus 4 lakh 10,000 and the market value is going to be 5 crore 19 lakhs 66,000, ठीक है। अब उसमें बैंक बैलेंस, द बैंक बैलेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज ऑन 2 फरवरी। 1 फरवरी के दिन भी बैंक बैलेंस उतना ही था, रिवाइज पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस उतना था, 2 फरवरी के दिन भी बैंक बैलेंस उतना ही है, सो दैट्स गोइंग टू रिमेन सेम। सो इनका बैंक बैलेंस सेम रहने के बाद व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल टोटल, और कोई लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुआ है। सो फाइनल टोटल चेक करते हैं कितना आ रहा है। सो फाइनल टोटल इज 5 crore 24 lakhs 66,800. That's going to be your net assets value as on total net asset value as on 2 February 2019. लेकिन हमें यहाँ पे उन्होंने NAV पूछा है, so let's calculate NAV with the help of formula. So हमें NAV का फॉर्मूला तो पता है, so let's calculate NAV. कॉपी कर रहा हूं मैं फॉर्मूला। NAV का फॉर्मूला टोटल NAV अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द टोटल नेट एसेट्स वैल्यू हमने कितने कैलकुलेट किए, दैट इज 5 crore 24 lakh 66,800. And dear student, the most important point, number of units is not 6 lakhs now. Number of units have changed to 6,39,733.521 units because we have issued 39,733.521 units to Mr. A. इसीलिए number of units change हो गया है. So let's take the revised units. So 6,39,733.521. So how much is the NAV? Let's calculate. This will be the NAV as on 2nd Feb. 6,39,733.521. So the NAV has changed and increased to 82.014. So that's the NAV as on 2nd February 2019. I hope you have understood with this sum. Okay. Then let's move on to problem number 9. The investment portfolio of a mutual fund scheme includes 10,000 shares of A Limited and 8,000 shares of B Limited acquired on 30/10/2018. The cost of A Limited shares is ₹20 while that of B Limited shares is ₹30. The market value of the shares at the end of 2018-19 were ₹19 and 32 respectively. On 31st/5/2019, the shares of both the companies were disposed of, realizing ₹18.50 per share of A Limited and ₹33.50 per share of B Limited. So important है. So important accounting entries in the books of the fund in the accounting year 2018-19 and 2019-20. So dear student, this sum is pertaining to journal entries that we have to pass in the books of asset management company, that is mutual fund company. So mutual fund के company में journal entries pass करते हैं ये पूरे transactions के लिए. So transaction क्या क्या है जरा check करते हैं. So dear student, transaction में you have purchased shares of two companies, A Limited and B Limited का shares आपने purchase किया है.
जो 2018-19 में आपने परचेस किया है और आपने ये शेयर्स को डिस्पोज किया 2019-20 में. So how the accounting entries are passed for these 2 years, that's what we are going to look in this sum. ठीक है, so ये sum journal entries का है. Let's check. So let's pass accounting entries in the books of mutual fund company. 8 particulars, LF, debit, credit. ठीक है. So Disha, as far as date is concerned, in the date column I am first writing the year, that is 2018-19. So first we are going to pass the entries for the year 2018-19. So 2018-19 में क्या हुआ था वो पहला चेक करते हैं और कौन से डेट पे एंट्री करना है वो चेक करते हैं. So 2 साल का जर्नल एंट्रीज पास करना है 18-19 एंड 19-20. So let's check. सबसे पहला 2018 में क्या हुआ है. The investment portfolio of a mutual fund scheme includes 10,000 shares of A Limited and 8,000 shares of B Limited acquired on 30/10/2018. तो 30 अक्टूबर 2018 को आपने 2 कंपनीज का शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, एक ए लिमिटेड और बी लिमिटेड. एक का मार्केट वैल्यू 20 का है और दूसरे का मार्केट वैल्यू 30 का है. एक का 10,000 और दूसरे का 8,000 शेयर्स आपने परचेस किया है. सो यू हैव टू रिमेंबर 30/10/2018 के दिन. 30/10/2018. So let's pass the journal entry. So now we are going to pass the journal entry for investing in securities. तो इन्वेस्टमेंट करने का जर्नल एंट्री तो हमें सबको पता है. इन्वेस्टमेंट का जर्नल एंट्री है इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, the value I'm going to write down the value over here. A लिमिटेड का हमने 20 कितना 10,000 की 20,000 10,000 शेयर्स खरीदा कुछ. एंड द वैल्यू ऑफ पर शेयर इज 20 रुपीज. तो ए लिमिटेड में हमने इन्वेस्ट किया है 10,000 इंटू 20. सो वी हैव इन्वेस्टेड ₹1,00,000 इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड. बराबर है. देन इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड. बी लिमिटेड में हमने खरीदे 8,000 शेयर्स एंड द मार्केट प्राइस वाज 30. So 8,000 into 30, that's going to be 2,40,000 हमने बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे. एंड ये एज यू नो इन्वेस्टमेंट खरीदने का जर्नल एंट्री टू बैंक अकाउंट. So to bank account, investment in A Limited, investment in B Limited, investment in shares लिखो, sorry investment in shares of A Limited लिखते हैं, specify करते हैं shares में invest किया है. Investment in shares of A Limited, investment in shares of B Limited to bank account and that's going to be 4,40,000. ठीक है, ये आपका जर्नल एंट्री है when you purchase investments. ठीक है. देन डियर स्टूडेंट्स,
इन्वेस्टमेंट खरीदने के बाद आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट खरीदने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट सेल कौन से दिन किया है, लेट्स चेक दैट। सो इन्वेस्टमेंट आपने 30/10/2018 को परचेस किया, ए लिमिटेड का 20 रुपीज, बी लिमिटेड का 30 रुपीज, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स एज एट द एंड ऑफ 2018-19 were 19 and 32 respectively. On 31/5/2019 मतलब आपने 31 मई 2019 को ये शेयर सेल कर लिए, बट ये स्टूडेंट 31 मई 2019 जो है वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, यानी 2019-20 में चला जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला आपको 2018-19 के एंड में यानी लास्ट दिन आपको क्लोजिंग एंट्रीज पास करना पड़ेंगे। वो क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्लोजिंग एंट्रीज पास करने के लिए क्लोजिंग रेट्स जो है वो 19 और 32 है। सो ए लिमिटेड का शेयर 19 रुपीज का हो गया है एज ऑन द एंड ऑफ 2018-19 एंड बी लिमिटेड का शेयर 32 रुपीज का हो गया है एंड के दिन। तो अकॉर्डिंगली एंट्री पास करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। सो 2018-19 ये ईयर पहले हम एंड कर रहे हैं, वो 31 मार्च 2019 के दिन लास्ट डे के दिन हम एंट्री पास करेंगे। एंड ये एंट्री देखो कैसे पास करेंगे, तो ए लिमिटेड का जो शेयर्स है उसका वैल्यू हुआ है 19 और बी लिमिटेड का जो शेयर्स है उसका वैल्यू हुआ है, ज्यादा हुआ था आई थिंक, एक का 19 हुआ है और दूसरे का 32 हुआ है ना, 19 और 32, ठीक है। सो एक का 19 हुआ है और दूसरे का 32 हुआ है। मतलब देखो ए लिमिटेड का जो शेयर है उसका वैल्यू कम हुआ है और बी लिमिटेड का जो शेयर है उसका वैल्यू बढ़ गया है लास्ट दिन। सो अकॉर्डिंगली हमको एंट्री पास करना पड़ेगा, लेकिन दोनों का अलग से एंट्री पास करना पड़ेगा। कैसे पास करते देखो, तो जब भी आपके कोई भी शेयर का मार्केट वैल्यू ईयर एंड के दिन कम होता है तो यू आर गोइंग टू पास द एंट्री एज रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। अब रेवेन्यू अकाउंट में आपका कितना रुपया जाएगा, सो रेवेन्यू अकाउंट में आपका जाएगा 10,000 शेयर्स का, डियर स्टूडेंट्स 10,000 शेयर्स का आपका 1 रुपया कम हुआ है, क्योंकि 20 का 19 हुआ है तो आपको 19 रुपीज का एंट्री नहीं पास करना है, आपको जो रिड्यूस्ड अमाउंट है, जो डिफरेंस है उसका एंट्री पास करना है, दैट इज 1 रुपी। सो दैट इज गोइंग टू बी 10,000 रुपीज, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके एक अकाउंट क्रिएट करेंगे जहां पे ये 10,000 क्रेडिट करके रखने वाले हैं हम। दिस इज द एंट्री दैट वी आर गोइंग टू पास when the value of your investment, the market value of price of your investment reduces as on the year end. So whenever इन्वेस्टमेंट का कोई भी शेयर का मार्केट वैल्यू ईयर एंड के दिन कम होता है तो ये एंट्री आपको पास करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट 31 मार्च के दिन दूसरा जो सिक्योरिटी है उसका मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुआ है। सो जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है तो क्या एंट्री पास करता है, जैसे उसका मार्केट वैल्यू बी लिमिटेड का शेयर का मार्केट वैल्यू 30 रुपीज का है बट दैट इज इंक्रीज टू 32, दैट मींस एन इंक्रीज ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट यू आर गोइंग टू पास व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ योर शेयर इंक्रीजेस। सो देखो द एंट्री इज गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, अकाउंट डेबिट करोगे आप and that is going to be debited by 8,000 rupees into the rise in the value is 2 rupees, so 8,000 into 2 तो 16,000 को हम डेबिट करेंगे and you are going to create an account which is called as to unrealized, so ये अकाउंट का नाम याद रखना है, unrealized appreciation reserve account. This is called as an unrealized appreciation reserve. The reason being अभी तक ये मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुआ है लेकिन ये जो इंक्रीज प्राइस है वो आपको मिला नहीं, आपने रियलाइज नहीं किया ऐसे,
दिस इज जस्ट अ मार्केट प्राइस इंक्रीज हुआ है, आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया, एंड हेंस द value that is increased is booked in the account called as unrealized appreciation reserve account. So ये account आपने open किया है as on last date. I hope this is clear. Okay, so these are the journal entries that you have to remember. So whenever there is a decrease in the value of shares, the journal entry will be revenue account debit to provision for depreciation. यानी डिक्रीज जब भी होता है तो हम रेवेन्यू में बुक कर देते हैं. रेवेन्यू अकाउंट इज नथिंग बट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी आपका जो डिक्रीज हुआ है वैल्यू उसको आपने लॉस करके बुक कर दिया, लेकिन जो इंक्रीज हुआ है वैल्यू उसको आपको प्रॉफिट करके बुक करने का अलाउड नहीं है, क्योंकि आप कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग. सो आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसको आपने बुक नहीं किया, उसको आपने एक सेपरेट अकाउंट में रखा है, दैट इज कॉल्ड एज अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट. सो उससे आपने रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. दिस आर द जर्नल एंट्रीज पर्टेनिंग टू द ईयर 2018-19. 18-19 ईयर हो खत्म हो गया है, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 2019-20. सो लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज फॉर 2019-20. एंड 2019-20 में जर्नल एंट्रीज पास करते समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, दैट इज 1/4/2019. आपको सबसे पहला ये जो अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व आपने लास्ट दिन क्रिएट किया था उसको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवर्स कर देना है. उस दिन के एंड में, यानी लास्ट ईयर के एंड डेट में आपने वो एक एप्रिसिएशन रिजर्व क्रिएट किया था, बट नेक्स्ट ईयर में जैसे आप जाओगे आप सबसे पहला उस एप्रिसिएशन रिजर्व को रिवर्स करके उसका इफेक्ट को नलीफाई कर दोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डे अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट 3,000 था वो अकाउंट में, जिसको आपने डेबिट किया क्योंकि आपको उसे नलीफाई करना है, टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए बी लिमिटेड 16,000. मतलब इन्वेस्टमेंट को भी आपने वापस उनके कॉस्ट पे लेके आए. 16,000 का वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज किया था वो आपने क्रेडिट करके उसका भी इफेक्ट को नलीफाई कर दिया. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ था, ये करने के बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने वो सिक्योरिटी को सेल किया है. सिक्योरिटी को हमने सेल किया है 31/5/2019 के दिन. ठीक है, 2019 के दिन हमने सिक्योरिटी सेल किया है. अब देखते हैं सिक्योरिटी सेल कौन से कॉस्ट पे हुआ है, कौन से वैल्यू पे हमने सिक्योरिटीज को सेल किया है. तो सबसे पहला ए लिमिटेड, हमने ए लिमिटेड के शेयर्स को कितने वैल्यू पे सेल किया है, तो लेट्स चेक. On 31/5/2019, the shares of both the companies were disposed of, realizing 18.50 per share for A Limited and 33.50 per share for B Limited. अब यहाँ पे वापस क्या पॉइंट अराइज होता है, A Limited का शेयर्स जो है we have sold it at 18.50 per share. That means dear students, if we are going to check the cost of A Limited shares, A Limited के शेयर का कॉस्ट 18 रुपीज का है, सॉरी 20 रुपीज का है जब हमने खरीदा था, और आज जब हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वी आर डिस्पोजिंग इट ऑफ एट 18.50. उसका मतलब ए लिमिटेड का शेयर्स बेचने पे हमें 1 रुपी 50 पैसे का लॉस हुआ है. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ए लिमिटेड में लॉस हुआ है और बी लिमिटेड का कॉस्ट 30 रुपीज का था और हमने उसे 33.50 में सेल किया, तो बी लिमिटेड में हमें गेन हुआ है 3.50 का. सो एक कंपनी का शेयर बेच के हमें लॉस हुआ है, दूसरे कंपनी का शेयर बेच के हमें गेन हुआ है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, चलो अकॉर्डिंगली हम एंट्री पास करते हैं लॉस का और गेन का अलग अलग से. सो पहले लॉस का एंट्री पास कर रहे हैं, ए लिमिटेड का शेयर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं. सो व्हेनेवर यू आर सेलिंग ए लिमिटेड का शेयर, तो देखो एंट्री क्या होगा. कोई भी सिक्योरिटी आप जब खरीदते हो तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हो, जब बेचते हो तो बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है. सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बैंक में कितना रुपया आ रहा है. सो डियर सर, यू हैव सोल्ड 10,000 shares of A Limited and the price that you have received is 18.50.
you have sold it for 18.50. So बैंक में आ रहा है 10,000 into 18.5, that's going to be 1,85,000. ये आ रहा है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। फिर आपको पता है कभी भी सेल में लॉस हुआ तो लॉस को डेबिट करते हो। सो डियर, आई एम डेबिटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। अब लॉस कितना हुआ है? सो डियर, लॉस हुआ है आपको 10,000 इंटू 1.50 का आपको लॉस हुआ है। सो आपको लॉस हुआ है इन ऑल 15,000 का, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट इन ए शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड आपने सेल कर लिया, एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड कितना था आपका? 10,000 था, इनटू द वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट वाज 20 रुपीज। सो वो 2 लाख का था, एंड द जर्नल एंट्री इज मैचिंग, ठीक है। I hope you have understood with this journal entry. So whenever you are selling any asset, that is whenever you are selling any shares, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, so बैंक अकाउंट will be debited. लॉस हुआ है ये डिस्पोजल में, तो लॉस अकाउंट will again be debited to investment in shares account, ठीक है। ये एंट्री पास करना है, लेकिन ये एंट्री पास करने के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, देखो। So this is something important. आपने लॉस बुक किया है 15,000 का, 2019-20 में आपने लॉस बुक किया 15,000 का, लेकिन आपने यही शेयर्स के ऊपर, ए लिमिटेड का ही शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी लॉस बुक किया था लास्ट ईयर ऑफ 10,000 रुपीज। देखो, आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करके रेवेन्यू अकाउंट में 10,000 का लॉस ऑलरेडी लास्ट ईयर बुक किया था। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो आपका टोटल लॉस 15,000 का ये साल आप दिखा रहे हो, उसमें से 10,000 का लॉस आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर बुक किया था। तो ये साल आपको रेवेन्यू अकाउंट में जो लॉस बताना है वो खाली 5,000 का बताना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि अगर पूरा आप 15,000 का लॉस दिखाओगे तो पूरा 15,000 ये साल के रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, एंड दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10,000 का लॉस लास्ट ईयर ही बुक किया था एज ऑन लास्ट डे। एग्जैक्टली। सो करंट ईयर में आपको ये 15,000 में से रेवेन्यू अकाउंट में खाली 5,000 लेने हैं, और उसका एंट्री आपको यहां पे करना है। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट यू आर गोइंग टू पास नाउ? तो देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने लास्ट ईयर क्रिएट किया था, उसको आपको जैसा ही ये सिक्योरिटी बेचा, वो जो प्रोविजन आपने क्रिएट किया था उसका अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोविजन ए लिमिटेड का शेयर्स पे आपने क्रिएट किया था। ए लिमिटेड का शेयर्स आप बेच रहे हो, तो उसका प्रोविजन जो क्रिएट किया उसको आप रिवर्स करोगे। सो आई एम going to pass a reverse entry for that provision. So provision for depreciation को मैं रिवर्स कर रहा हूं, जो क्रिएट किया था मैंने लास्ट ईयर। So provision for depreciation account will be debited, and वो कितना क्रिएट किया था ए लिमिटेड का शेयर्स के लिए? 10,000, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट विल बी डेबिटेड, रेवेन्यू अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 5,000। जैसा मैंने बोला था, ये साल रेवेन्यू अकाउंट में 5,000 रुपीज जाएगा टू लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स जो टोटल हमने बुक किया था डेबिट में, वो 15,000 था, उसको क्रेडिट कर दिया। तो देखो, ये एंट्री के कारण क्या हुआ, जो प्रोविजन अकाउंट आपने ए लिमिटेड का शेयर्स के ऊपर लास्ट ईयर क्रिएट किया था, वो प्रोविजन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोविजन अब रखने का कोई काम ही नहीं है, ए लिमिटेड का शेयर्स ही चला गया। सो वो प्रोविजन को आपने रिवर्स कर दिया, 10,000 सेट ऑफ हो गया। रेवेन्यू अकाउंट में ये साल बुक हुआ 5,000, क्यों? क्योंकि टोटल लॉस 15 का हुआ था, लास्ट ईयर ऑलरेडी आपने 10,000 का लॉस बुक किया था, तो लास्ट ईयर का 10,000 बुक किया हुआ रेवेन्यू अकाउंट में, और ये साल का 5,000, तो टोटल लॉस 15,000 का बुक हुआ, और वो 2 साल में स्प्लिट करके बुक हुआ है, ठीक है। और जो लॉस अकाउंट क्रिएट किया था वो अपने क्रेडिट कर दिया, तो लॉस अकाउंट जो ओपन हुआ था वो भी सेट ऑफ हुआ ये एंट्री के बाद। So this is what you have to remember. So whenever a shares is sold at loss, this is what you have to pass the journal entry after passing the entry for loss. And the last entry that you are going to pass is
You are going to sell shares of B Limited and you have sold shares of B Limited at profit. So once again on 31st May 2019 B Limited का शेयर्स को सेल करते हैं लेकिन वहां पे प्रॉफिट हुआ है. सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो बैंक अकाउंट डेबिट की करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? बी लिमिटेड का हमारे पास 20,000 शेयर्स है और हमने उन्हें सेल किया है 33.50 में. So we have sold it at 33.50. So accordingly bank में आएगा 20 lakh into 33.5. So that's going to be 6 lakhs. 20,000 ही है ना? नहीं sorry 8,000 है. I'm sorry. 20,000 ही 8,000 है B Limited का. So 8,000 into 33.5. So that's going to be 2,68,000. ठीक है. फिर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इसीलिए डियर स्टूडेंट्स profit will be credited. So to investment that is going out, investment in shares of कौन सा था? B Limited हम सेल कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ B Limited एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ B Limited हमने कितना किया था? 8,000 शेयर्स ऑफ 30 रुपीज था हमारे पास. सो हमने इन्वेस्ट किया था 2,40,000 लेकिन हमको मिला 2,68,000. तो हमको एडिशनली जो मिला है दैट इज आवर गेन और जो भी गेन या लॉस है वो हम बुक करते हैं रेवेन्यू अकाउंट में. सो यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट हुआ है मतलब ये प्रॉफिट हमने बुक किया है. रेवेन्यू अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कितना हुआ है? तो 8,000 शेयर्स के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है 3.50 का एंड दैट इज गोइंग टू बी 28,000 का प्रॉफिट हुआ है ऑन सेलिंग दिस शेयर्स. प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि ये बी लिमिटेड का शेयर्स के लिए हमने कोई प्रोविजन अकाउंट क्रिएट नहीं किया था, ना कि बी लिमिटेड का शेयर्स का कोई लॉस या प्रॉफिट लास्ट ईयर बुक किया था. क्लियर विद दिस? सो दिस आर द जर्नल एंट्रीज दैट वी आर गोइंग टू पास इन द बुक्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी. ठीक है. एंड ये जर्नल एंट्रीज का सम थोड़ा अच्छे से करना क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है. सो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ जर्नल एंट्री वाला सम इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सम फॉर म्यूचुअल फंड. चलो अगेन द लास्ट सम इज फॉर जर्नल एंट्रीज. ये एग्जाम में आया हुआ सम है आपका. लेट्स चेक कि ये सम कैसे करते हैं. वो भी जर्नल एंट्रीज वाला ही है तो लास्ट सम की तरह ही है. सो सिमिलर काइंड ऑफ जर्नल एंट्रीज वी आर गोइंग टू पास विद डिफरेंट अमाउंट्स. सो चेक करते हैं. द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द म्यूचुअल फंड्स स्कीम इंक्लूड 5,000 शेयर्स ऑफ X लिमिटेड एंड 4,000 शेयर्स ऑफ Y लिमिटेड acquired on 31st/12/2017. सो दिस इज फॉर द ईयर 17-18 पहला साल एंड 18-19 का दूसरा साल है. The cost of X limited shares is ₹40 while that of Y limited shares is ₹60. ठीक है. The market value of these shares at the end of 2017-18 were 38 and 64 respectively. So 17-18 के लास्ट दिन दैट इज 31st मार्च के दिन आपको लास्ट दिन का मार्केट वैल्यू दिया है. ठीक है. एंड ये शेयर्स को आपने नेक्स्ट ईयर में that is 2018-19 में आपने सेल किया on 36/2018. The shares of both the companies were disposed of realizing ₹37 per share for X Limited and 67 per share for Y Limited. Show important accounting entries in the books of the fund for accounting year 2017-18 and 2018-19. तो quite similar kind of sum है. So dear student वापस similar kind of journal entries पास करते हैं. So what I'm going to do, I'm going to copy down the journal entries क्योंकि journal entries are going to be quite same. ठीक है. So this is accounting entries in the books of mutual fund, but the year is going to change. यहाँ पे year 17-18 है.
सो पहला ईयर 17-18 है, 17-18 के दिन आपने जो परचेस किया है वो परचेस कौन से दिन किया आपने? 31st 12/2017 के दिन आपने परचेस किया है। सो परचेस करने का सेम जर्नल एंट्री रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सो यहाँ पे नाम एक्स लिमिटेड है और आपने एक्स लिमिटेड के कितने शेयर्स खरीदे? सो डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आपने 5000 खरीदे और उसका वैल्यू है 40 रुपीज का। तो उन्होंने क्या किया? देखो, शेयर्स को हाफ कर दिया और वैल्यू को डबल कर दिया, जिसके कारण द टोटल इज गोइंग टू रिमेन 2 लाख। तो एग्जाम में जब ये सम आया था तो उसका प्रीवियस सम का ही वैल्यूज को मॉडिफाई करके उन्होंने एग्जाम में सम डाला था। ठीक है, सो देखो, वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन सेम, शेयर्स को हाफ कर दिया और प्राइस को डबल कर दिया, तो वैल्यू सेम रहा। देन इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड का शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है, सॉरी वाई लिमिटेड का शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है, वापस वही है, इन्वेस्टमेंट आपने 4000 का किया है और उसका वैल्यू उन्होंने डबल कर दिया, दैट इज 60। सो द फाइनल अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन सेम टू बैंक अकाउंट 4,40,000। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, देन डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ है? लास्ट दिन, दैट इज 31 मार्च 2018 यहां पे आएगा। लास्ट दिन क्या हुआ है? लास्ट दिन आपका एक्स लिमिटेड का जो वैल्यू है वो रेड्यूस हुआ है और वाई लिमिटेड के शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है। तो वापस वही किया है उन्होंने, एक शेयर का वैल्यू कम किया है, एक शेयर का लास्ट दिन का वैल्यू मार्केट प्राइस की कम हुआ है और एक शेयर का मार्केट वैल्यू राइज हुआ है। सो चेक करते हैं किसका मार्केट वैल्यू कितना हुआ है। So as per market value of X Limited is concerned, the market value turned out to be 38 and 64. तो एक का 38 हुआ है, दूसरे का 64 हुआ है, वापस वही किया, डबल कर दिया उन्होंने। So 38 and 64, चलो अकॉर्डिंगली एंट्री पास करते हैं। तो जिसका मार्केट वैल्यू 38 हुआ है वो शेयर्स का मार्केट वैल्यू कम हुआ है, और कम हुआ तो हम एंट्री पास करते हैं रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ठीक है, सॉरी ये वाले सम में नहीं, ये वाले सम में। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, सो रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट करते हैं 5000 और यहां पे 38 हुआ है, मतलब यहां पे 2 रुपीज कम हुआ है, बट द टोटल अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज 10,000 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। ये जब वैल्यू कम होता है तो रेवेन्यू टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये एंट्री हम पास करते हैं एज ऑन लास्ट डे। ठीक है, फिर दूसरे शेयर का मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुआ है और जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम एंट्री पास करते हैं इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड शेयर्स, और वो इन्वेस्टमेंट कितने का है? सो डियर स्टूडेंट, दैट इज 4000 शेयर्स और यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो राइज हुआ है 60 का 64 हुआ है, दैट मींस द राइज इन मार्केट वैल्यू इज 4 रुपीज। सो अगेन द वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन सेम टू अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट, वही अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 2017-18 का एंट्रीज। देन 2017-18 के बाद 2018-19 में पहला एंट्री जो आपको पास करना है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। 2018-19 के फर्स्ट डे, दैट इज 1/4/2018 के दिन द एंट्री इज गोइंग टू रिमेन सेम। यही एंट्री को आपको रिवर्स करना है, दैट इज अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड शेयर्स एंड द अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन सेम एज 16,000। ठीक है, फिर आपने ये शेयर्स को सेल किया है और सेल कौन से दिन किया है आपने? सो यू हैव सोल्ड इट इन दिस सम, यू हैव सोल्ड इट ऑन 30th जून 2018 के दिन आपने सेल किया है। एंड ये जब से ही आपने सेल किया, एक सेल शेयर्स जो सेल किया है एक्स लिमिटेड का, वहां पे आपको लॉस हुआ है और वाई लिमिटेड के शेयर्स में आपको गेन हुआ है। तो देखते हैं आपने कौन सा कंपनी का शेयर्स कितने वैल्यू पे सेल किया है। So the shares of both the companies were disposed of, realizing 37 for X Limited and 67 for Y Limited. So do remember it is 37 for X Limited. तो X Limited में आपको लॉस हुआ है 3 रुपीज का और Y Limited को में आपको गेन हुआ है 7 रुपीज का. So 37 and 67 are the prices. So let's take the prices and let's pass the journal entries. So यहाँ पे X Limited का शेयर सेल करते समय आपको लॉस हुआ है. सो लॉस का एंट्री आप कैसे पास करोगे?
एक्स लिमिटेड का शेयर्स आपके पास कितने हैं? आपके पास एक्स लिमिटेड के 5000 शेयर्स है। सो 5000 इनटू आपने सेल किया है उसे 37 रुपीज में, 37, and I think the value is going to remain same. 5000 into 37, that's going to be 1,85,000. फिर लॉस ऑन डिस्पोजल भी कितना आएगा? सो लॉस ऑन डिस्पोजल इज 5000 शेयर्स का आपको लॉस हुआ है। सो डियर लेट्स चेक द लॉस। 3 रुपए का आपको लॉस हुआ है क्योंकि 40 रुपीज का उसका वैल्यू था और आपने 37 में सेल किया तो 3 रुपीज का लॉस हुआ है। सो लॉस का टोटल अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन सेम 50,000 टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, दैट इज 5000 इनटू आपने इन्वेस्ट किया था 40 रुपीज के हिसाब से, एंड दैट्स गोइंग टू बी 2 लाख। ठीक है, और आपको जैसे लास्ट सब में समझाया था, जैसे आपका लॉस का एंट्री होता है, लॉस को आपको स्प्लिट करना है क्योंकि कुछ लॉस आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी बुक किया है तो बाकी का लॉस ये साल बुक करना है आपको, और प्रोविजन अकाउंट जो क्रिएट किया है उसको आपको रिवर्स करना है व्हेनेवर देयर इज अ लॉस। सो चलो सेम एंट्री पास करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने कितने का क्रिएट किया था? 10,000 का। सो उसको मैंने रिवर्स किया है। जैसे 10,000 का प्रोविजन अकाउंट आपने क्रिएट रिवर्स कर दिया, आपका ये साल का लॉस बुक होगा 5,000 का और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स आपका 15,000 का रिवर्स हो जाएगा। सो दैट एंट्री इज गोइंग टू रिमेन सेम, वैल्यू भी सेम ही रहने वाला है। देन ऑन द सेम डेट आपने वाई लिमिटेड का शेयर्स जो सेल किया है वहां पे आपको गेन हुआ है। सो गेन का जर्नल एंट्री वही सेम रहेगा। बैंक अकाउंट में आपके पास आएगा 4,000 इंटू आपने सेल किया है 67 रुपीज में। So 4,000 into 67, that amount is going to remain same as 2,68,000. तो पूरा सम सेम है अमाउंट के साथ, खाली उन्होंने अमाउंट प्राइस को डबल किया और शेयर्स को हाफ कर दिया है। इन शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, सो वाई लिमिटेड का शेयर्स आपने जब खरीदा था तो उसका वैल्यू था 460 रुपीज का, 60 का। So that is going to be 2,40,000 and आपको प्रॉफिट हुआ है 4,000 इंटू गेन हुआ है आपको 7 रुपीज का। So 4 7 28, so 28,000 का गेन हुआ है। So these are the journal entries for your last sum, that is question number 10। तो वही जर्नल एंट्रीज कॉपी किया था मैंने, अमाउंट सारे सेम थे, खाली मुझे अंदर ही अंदर जाके वैल्यूज और प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स कम करने थे। जर्नल एंट्रीज का पैटर्न और जर्नल एंट्रीज सेम ही रहने वाला है। सो एग्जाम में वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि हम 2 कंपनीज के शेयर्स खरीदेंगे, फिर लास्ट ईयर एंड के दिन एक शेयर का प्राइस रिड्यूस होने वाला है, एक शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो हमको रिड्यूस का एंट्री पास करना है और शेयर्स का वैल्यू बढ़ने का एंट्री पास करना है। फिर नेक्स्ट ईयर में जाके हमें वो अनरियलाइज्ड रिजर्व को रिवर्स करना है। फिर हम जब सेल करेंगे तो एक शेयर के पीछे लॉस होगा और दूसरे शेयर के पीछे गेन होगा। जहां पे लॉस हो रहा है वो लॉस को अपने प्रोपोर्शनेटली 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज व्हाट दिस सम्स आर। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, सो हियर वी हैव डन विद